Hello everyone, this is Parul Goel from Infinity Vision. This is NTSC Stage 1 session. Today's session is NTSC Stage 1. As we all know that the exams is actually two parts, the MAT and the SAT part, and SAT part में you'll have the science subject as well. Science में we know that there is physics, chemistry and biology. Questions comes from. And in today's NTSC Stage 1 session, हम कुछ questions bio section से discuss करने वाले हैं. In the previous session, I have brought certain questions from the first topic of life processes, that is animal nutrition और ह्यूमन डाइजेशन. ठीक है, तो अब उसी चेन को कंटिन्यू करते हुए आपका सेकंड टॉपिक लाइफ प्रोसेस इज रेस्पिरेशन एंड द थर्ड वन इज सर्कुलेशन. तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विच कंप्राइजेस द टॉपिक रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन फ्रॉम द मेन टॉपिक दैट इज लाइफ प्रोसेसेस. So should we begin with the topic? With the questions? Okay. Question number 1. End product of glycolysis. Very simple. We have studied in the class as well. Respiration से topic से question है. Daksh, you are right बेटा. It is pyruvic acid. है ना, respiration की जब हम बात करते हैं तो respiration actually comprises 3 steps. है ना, 3 steps में होता है respiration. First is what? It begins with the simple glycolysis process. तो glycolysis process की बात कर लेते हैं. Then it's actually, if it, glycolysis is a common pathway of both aerobic and anaerobic respiration. Glycolysis में जो product बनता है, उसका fate will depend कि what will be the fate of the product of the glycolysis depend on the presence and absence of oxygen. अगर उसको ऑक्सीजन मिलेगा, it will the process will go accordingly. If it does not get the oxygen, there will be an anaerobic respiration. But अगर हम glycolysis की बात करें तो it is a common pathway. Glycolysis is the first step in respiration, and then following to glycolysis is the cellular respiration. है ना, तो ये तो हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. टू बिगिन विद वी कैन स्टार्ट विद वेंटिलेशन. वेंटिलेशन सिंपल मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट. It could be exchange of gases, could be, first it comes of the external respiration, then it goes to the internal respiration. And if we talk about glycolysis का end product क्या होता है, so it is pyruvic acid. Pyruvic acid is the end product of glycolysis, and whether the oxygen is present or absent, it will undergo either aerobic or anaerobic respiration. ठीक है, सिंपल सा चीज है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि एंड प्रोडक्ट ग्लाइकोलाइसिस का क्या है. नेक्स्ट, वेरी सिंपल अगेन, रेस्पिरेशन कैन अकर ओनली एट नाइट, ओनली ड्यूरिंग द डे, बोथ डे एंड नाइट, नन ऑफ दीज. अब रेस्पिरेशन तो एक बिल्कुल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लाइफ प्रोसेस है. ऑल ऑफ यू आर कंप्लीटली करेक्ट, है ना. चाहे हम प्लांट्स की बात करें, चाहे एनिमल्स की बात करें, एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ respiration. Though plants perform the process of photosynthesis because they are autotrophs, they are producers, they releases oxygen and during the process of photosynthesis that purifies the atmosphere. But then plants are also living organisms, they also respire, so they also go for respiration both during day and night. So all living organisms, respire both during day and night. So simple question, the correct option is option number C. चलिए, moving on to next one. Epiglottis guards the opening of. है ना, epiglottis is a flap. We have learned about the structure of the trachea, and on the upper surface of the trachea, what you saying? Esophagus. Many of you saying epiglottis guards the opening of B. No, we have studied this in class. So basically trachea, upper bulging portion, this is one of the, respiratory tract that is called as trachea, covered with the rings, right? Then this upper bulging portion of the trachea is called as what? Larynx, right? Larynx is commonly called as voice box. ठीक है, और voice box के upper surface पे is the flap that is called as epiglottis.
ठीक है, और लारिंग्स के इसके अपर सरफेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, एपिग्लॉटिस गार्ड्स द ओपनिंग। अभी बात सबको समझ आ गई होगी कि एपिग्लॉटिस किसकी ओपनिंग को गार्ड करता है ना। व्हाई वी आर सेइंग एपिग्लॉटिस, बिकॉज ग्लॉटिस इज द अपर सरफेस ऑफ द लैरिंग्स एंड बिकॉज इट इज ऑन द अपर सरफेस द टर्म एपी इज यूज्ड। So basically epiglottis is actually present on the upper surface of the larynx, that is glottis, and it guards the opening of the trachea, or more precisely we'll say larynx. Why it is doing so? Because it actually covers the opening of the trachea or the larynx during the swallowing of the food to prevent the food particle to prevent the entry of food particle into the trachea, है ना। हम खाते वक्त अगर मानो हम इसोफेगस में ना जाके कोई भी फूड पार्टिकल हमारा विंड पाइप में अगर चला जाएगा, डेफिनेटली वील हैव अ प्रॉब्लम। द फूड पार्टिकल शुड गो इनटू द फूड पाइप ओनली सो दैट इट विल कैरीज टू योर स्टमक। बट इफ इंस्टेड इफ दिस एपिग्लॉटिस विल नॉट प्रेजेंट, नथिंग विल बी देयर, तो नथिंग इज एक्चुअली गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द this trachea so that the food particle can enter into your windpipe. Windpipe is what? Windpipe is trachea. So to prevent the entry of food particle into your windpipe, epiglottis is present on the surface of the larynx, that is glottis. Hence the name given is epiglottis. I guess समझ आ गया होगा सबको? Moving on to next question. Which of the following is the main respiratory fuel? है ना, रेस्पिरेटरी फ्यूल की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन वी नो दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, and then it gives us, yes, absolutely, everybody is right. Daksh, Arjit, Shubham, Tanya, Shaurya, everyone is correct. The main respiratory fuel is glucose. Glucose is broken down. अब देखो यहाँ पे एक चीज और भी क्वेश्चन बन सकता है कि whether respiration is an anabolic process or catabolic process. Anabolic, catabolic process आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा. In case if you don't know, so basically there are two types of processes, catabolic and anabolic, because we are discussing respiration and we are saying that respiratory fuel is glucose. That means the broken down of glucose takes place, है ना, glucose breakdown होता है, right? समझ आ रही है बात? टू रिलीज एनर्जी, बेसिक फंडा जो है रेस्पिरेशन, व्हाई इट इज बीन डन टू रिलीज एनर्जी, बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लूकोज विच इज द मेन रेस्पिरेटरी फ्यूल कैन टेक्स प्लेस। तो देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर चीजें ब्रोकन डाउन हो रही हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? कैटाबॉलिक बोलेंगे। और रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में हमारा ग्लूकोज इज बीन ब्रोकन डाउन, है ना। So it is a catabolic process. On the contrary, अगर मैं फोटोसिंथेसिस की बात करूं तो फोटोसिंथेसिस में तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो वहां पे तो ग्लूकोज बन रहा है, जस्ट अ रिवर्स प्रोसेस। वहां पे ऑक्सीजन लिबरेट हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एनाबॉलिक प्रोसेस। So basically synthesizing of substance is anabolic process and the categorizing or broken down of the substance is catabolic process. Hence respiration is a catabolic process and photosynthesis is an anabolic process. ध्यान रखनी हमें, यहाँ पे glucose has been broken down to release energy in the presence of oxygen. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन एनारोबिक रेस्पिरेशन थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर ठीक से पढ़ोगे ऑप्शंस को तो समझ में आ जाएगी बात। कैन एनी वन ऑफ यू गिव द आंसर? इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज गिवन आउट, यस दाक्ष राइट बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन, ऑक्सीजन इज टेकन इन। वो ऑप्शंस ऐसे नजर आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट इफ यू हैव रेड वेल इट इज वेरी मच क्लियर दैट द ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, ऑक्सीजन इज गिवन आउट थोड़ी ना होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। तो एरोबिक में भी नहीं होता, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप, कार्बन डाइऑक्साइड टेकन इन। रेस्पिरेशन में हम कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेंगे भाई? ऑक्सीजन इज टेकन इन, बिल्कुल गलत बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक में नहीं होता ऐसा, बट देन इट अकर्स during the process of anaerobic respiration. And generally हम इसकी जो बात कर रहे हैं anaerobic respiration की, it is basically the fermentation process, है ना, जो कि yeast में होता है in the absence of oxygen,
and the two main products which has been synthesized as ethyl alcohol and the carbon dioxide. तो ये जो carbon dioxide produce होती है, it is widely used in the कौन सी इंडस्ट्री में यूज होती है बता सकते हो? which is been given out during the anaerobic respiration. During the anaerobic respiration, which the carbon dioxide is given out, so it is one of the kind of the fermentation process as well, which is occurring in yeast, है ना? और वो widely used in brewers industry, bakery industry, that makes the bread light and spongy. You're getting my point? और अगर जो ethyl alcohol जो बनता है, that is used in wine industry. तो बहुत ही large production है इसका. चलिए आगे बढ़ते हैं. The correct order of air reaching from the atmosphere to the lungs is through. तो आपको ऑर्डर बताना है. अगर आपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ा है, आप एक सेकेंड में आंसर निकाल दोगे इसका. Yes, many of you are correct. Daksh, Disha, right. Arjit, you're right. External nares. Nares is basically called as nostrils. है ना? Yes, everyone is correct over there. तो nostrils की हम बात करें तो it is external nares, larynx. उसके बाद the air goes to the external through the external nostrils or nares, then to the nasal cavity जो कि mention नहीं है इसमें, then to the larynx. Voice box अभी हमने देखा था. Larynx opens into the trachea because larynx is the upper bulging portion of the trachea only. Then it goes to air sac, that is alveoli. है ना? बाकी हम देखें, देखो ना एक्सटर्नल लेयर्स कितने बाद में दिए, तो ये वैसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. ये तो बहुत बात की कहानी है, लास्ट की बिल्कुल कहानी है, फोर्थ ऑप्शन में जो गिवन है. सो इट इज ऑप्शन ए, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एयर सैक. ठीक है? तो हमें ट्रैक्ट भी ध्यान रखना है. इसी यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, ये इस तरह से जरूर पढ़ना चीज. इट इज गिवन फ्रॉम द एटमोस्फेयर टू द लंग्स. सपोज इट इज गिवन फ्रॉम द लंग्स टू द एटमोस्फेयर, तब अकॉर्डिंगली ऑप्शंस होते हैं और हमको उसी टाइप से देख के ऑप्शंस को देन वील मैच इट. ठीक है? तो हम क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ेंगे बिफोर रीचिंग टू द राइट आंसर. यस, ट्रैकिया इज लाइंड विद इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ. अभी देखो मैंने ट्रैकिया बनाया था विंड पाइप, तो मैंने कैसे बनाया था? आई हैव इट कवर्ड विद द सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स. है ना? हमने कैसे किया था? आई हैव जस्ट ड्रॉन इट लाइक दैट. इसी तरीके से. तो व्हाट आर दीज? दीज आर बेसिकली सी शेप्ड. नो तने, यूर रॉन्ग बच्चे, थोड़ा सा गलत कर दिया तुमने इस बारी. सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स. तो आपको एक्चुअली ये बताना है, हमें ये मालूम है कि ये रिंग्स जो है वो कार्टिलेज की बनी है, बट यू नो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट. शुभम इज सेइंग इज बी. इनकरेक्ट, इट इज नॉट इवन बी बेटा. अब देखो तुम लोग ने बी और सी तो अपने आप एलिमिनेट कर दिए, आंसर्स गलत देखे. अब इट विल बी लेफ्ट इज ईदर ए और डी. है ना? देखो कार्टिलेज की बात करें ना, डिफरेंट टाइप्स के कार्टिलेज होते हैं. इट कुड बी हेलाइन कार्टिलेज, it could be yellow fibrous cartilage, it could be elastic cartilage. ठीक है? तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. लेकिन अगर हम इनकी बात करें, सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स की बात करें, तो ये सी शेप कार्टिलेजेस रिंग्स जो होती हैं आपके हेलाइन कार्टिलेज की बनी होती है. हेलाइन का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट. तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होता है विच कवर्स दी ट्रैकिया, योर विंड पाइप, एंड दैट टू इज इनकम्प्लीट. ये बात भी ध्यान रखना है हमको. सी शेप का क्या मतलब है ना, पीछे डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट नहीं है, वेंट्रली प्रेजेंट है, तो इसलिए इसको सी शेप नाम दिया है. इट एक्चुअली कवर्स द ट्रैकिया ऑन द वेंट्रल साइड ओनली, फ्रंट साइड, बट देन इट इज एब्सेंट डॉर्सली, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज सी शेप्ड कार्टिलेजेस रिंग. तो दैट इज व्हाई वी आल्सो कॉल्ड इट एज इनकम्प्लीट रिंग्स. ठीक है? और किसका बना है? हेलाइन कार्टिलेज का बना है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी हेलाइन कार्टिलेज. ठीक है? नहीं, क्वेश्चन में बेटा इनकम्प्लीट ही है. दिस इज नॉट अ स्पेस बिटवीन. ओके बेटा, ये पूरा इनकम्प्लीट है, राइट? इनकम्प्लीट रिंग्स की है बात कर रहे हैं हम, और सी शेप्ड इसीलिए बोलते हैं हम उसको. एंड इट कंसिस्ट ऑफ द कार्टिलेज, एंड दैट कार्टिलेज इज हेलाइन कार्टिलेज. राइट बेटा? चलिए आगे बढ़ लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए. ओके, यस, लंग्स ऑफ ह्यूमन आर वेरी सिंपल.
है ना, सॉलिड होंगे तो फिर तो बलून की तरह एक्ट नहीं करेंगे, लंग्स एक्ट जस्ट लाइक बलून, है ना. इलास्टिक इज नॉट अ प्रॉपर वर्ड टू यूज दक्ष फॉर दी लंग्स, है ना. लंग्स के लिए इलास्टिसिटी की बात नहीं करेंगे. लंग्स आर स्पंजी इन नेचर. ठीक है, कैसे बोलेंगे? स्पंजी होते हैं. वेन एवर एयर गेट्स इन इट गेट्स एनलार्ज बिकॉज वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड प्रेशर डिक्रीजेज, है ना. ये भी आपको मालूम होगा, हम रेस्पिरेशन का टॉपिक पढ़ चुके हैं. यस शुभम, नाउ यू आर राइट. बिकॉज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन क्या होता है, द डायफ्राम गोज डाउन बिकॉज डायफ्राम इज द फ्रेनिक मसल. आई टोल्ड यू इन द क्लास, it is one of the kind of the phrenic muscle that goes down and the ribs move outwards with the muscles, है ना. तो अगर चीज आपकी जो चीज प्रेजेंट है जो उसको कवर कर रही है thoracic cavity को, लंग्स के, तो diaphragm moves down and the ribs move outward. That means volume increases, pressure decreases. तो volume of a thoracic cavity as a whole increases. Once the volume of thoracic cavity increases, volume of the lungs increases. तो अगर हम ये बोल रहे हैं कि volume of lungs increases, decreases, है ना, accordingly, that means the lungs are spongy in nature. जब कोई चीज स्पंजी होगी ना, तभी वो बलून की तरह से इट विल बी फूलेगी और कम होगा, एक्सपेंशन होगा, कंट्रैक्शन होगा. ठीक है, तो लंग्स आर स्पंजी इन नेचर. दैट इज व्हाई आवर ब्रीदिंग और वेंटिलेशन इज पॉसिबल, राइट. यू आर गेटिंग माय पॉइंट. तो लंग्स आर स्पंजी इन नेचर, ध्यान रखनी है बात हमको. नंबर ऑफ एल्वियोलाई इन द ह्यूमन लंग्स इज वेरी सिंपल. हमने पहले भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है इन द प्रीवियस क्लासेस, है ना. तो इट इज अराउंड 300 to 400. तो वेरी सिंपल है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसा कुछ इसमें समझाने वाला नहीं है. आपको ध्यान रखनी है नंबर ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट इन ईच लंग्स, इन लंग्स. ओके, रिडक्शन इन दी रेस्पिरेटरी, दिस इज इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं. रिडक्शन इन रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ द लंग्स ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ पार्टीशन इन दी एल्वियोलाई, है ना. जो एल्वियोलाई के बीच में जगह होती है, अगर उसका ब्रेक डाउन हो जाए तो फिर क्या होगा, कौन सा डिजीज होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो, एस्थमा जो है वो हम सब जानते हैं. एस्थमा कैसे होता है? व्हेन द ट्यूब्स व्हेन द टिश्यू सराउंड्स द रेस्पिरेटरी ट्यूब्स स्वेल्स अप. जब रेस्पिरेटरी ट्यूब्स के सराउंड्स जो टिश्यू होता है वो स्वेल्स अप हो जाता है, सो दैट कंप्रेसेस द ट्यूब्स. अब जब ट्यूब्स कंप्रेस होंगे आपके, डेफिनेटली इट विल रिजल्ट इन ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्रीदिंग. तो उस प्रोसेस को, उस डिसऑर्डर को हम एस्थमा बोलते हैं. और हमें ये बात ध्यान रखनी है, एस्थमा इज एन एलर्जिक डिसऑर्डर. ठीक है, और कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर अगर आपका है, सो दैट मीन्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज हिस्टामीन. जब आपको किसी भी टाइप की, ये तो हम एस्थमा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगर कोई भी टाइप की आपको एलर्जी है, दैट मीन्स रिजल्टिंग इन द इंक्रीज इन द सब्सटेंस ऑफ हिस्टामीन इन योर ब्लड. तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजेस ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन. यस बेटा, सिद्धांत, यू आर राइट बच्चे, दिस इज डी एक्चुअली. तो वेन एवर देयर इज एलर्जिक रिएक्शन इन योर बॉडी, क्वेश्चन अगर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इंक्रीजेस, ऑलवेज मार्क ऑन हिस्टामीन. ठीक है, इसी वजह से कोई भी एलर्जिक डिसऑर्डर हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट इज गिवन? इट इज एंटीहिस्टामीन ड्रग्स गिवन. ठीक है, ध्यान रखनी हम, कोई भी हमको एलर्जिक डिसऑर्डर होगा तो एंटीहिस्टामीन ड्रग्स आर गिवन टू द पेशेंट. तो ये इसकी क्वेश्चन में इसकी बात नहीं हो रही है. ब्रोंकाइटिस इज द अगेन डिसऑर्डर, इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई. ब्रोंकाई का स्वेल्स अप हो जाना, उसे हम बोलते हैं. तो अगर पार्टीशन ब्रेक डाउन हो रहा है इन द एल्वियोलाई, दैट इज एम्फाइसीमा. ठीक है, और मैंने किसी प्रीवियस क्लास में, सेशन में ये बात बताई थी आपको. देयर वाज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस ऑर्डर ओनली. अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी पूछा जाए कि ड्यू टू स्मोकिंग कौन सा डिसऑर्डर कॉज होगा, ऑलवेज मार्क ऑन एम्फाइसीमा, क्योंकि ये जो कंडीशन आपको बता रहे हैं, इट इज ड्यू टू स्मोकिंग. ठीक है, तो अगर स्मोकिंग से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर की हम जब भी बात करेंगे, इट इज ऑलवेज एम्फाइसीमा. इट इज वन ऑफ द रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव स्मोकिंग. ठीक है, हम ध्यान रखेंगे ये बात. Okay, moving on to next question. Blood flows through sinuses. अब ये question last class में, regular class जब हमारी थी, तो I have told you, yes Daksh, you are right बेटा.
कि देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. यस, बोथ ऑफ यू आर राइट. तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, वी नो दैट, है ना. दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर मैं क्लोज की बात करूं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज एक्चुअली ब्लड वेसल्स आर प्रॉपरली प्रेजेंट, ब्लड इज कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स ओनली, ब्लड इज प्रेजेंट ओनली इन द ब्लड वेसल्स. बट इन केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड वेसल्स आर completely absent. That is why blood is filled throughout the cavity, and this cavity which is filled with the blood, उसको हम क्या बोलते हैं? Sinuses. What we'll call it as? Sinuses, or even we can call it as lacunae. ठीक है, तो ऐसी कैविटीज में जिसमें ब्लड फिल्ड हो, इट इज कॉल्ड इट साइन्यूसिस. तो अब आपको आई गेस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, है ना. ब्लड फ्लोज थ्रू साइनसेस इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा बिकॉज इट हैज ब्लड वेसल्स एंड blood is confined to blood vessels, is present in blood vessels. ये हम जो बात कर रहे हैं pulmonary circulation, double circulation की, ये we know that there are two types of circulation present which comprises of double circulation. Pulmonary circulation में the blood reaches to the pulmons for oxygenation, and systemic circulation में the blood is reaches to the different parts of the body. Oxygenated blood is reaching to the different parts of the body, है ना. Why it is systemic circulation? Because it is providing the oxygenated blood to the different systems of the body. ठीक है, तो ये यहाँ पे सर्कुलेशन की कहानी बता रहे हैं आपको, डबल सर्कुलेशन की. लेकिन ऑप्शन में हमसे पूछ रहे हैं कि साइनसेस में जो ब्लड होता है वो कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम की कहानी है. इट इज अबाउट ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तो हम ध्यान रखेंगे. चलिए आगे बढ़ लेते हैं. valves are present, not present in. कहाँ पे valves नहीं होंगी? Very simple, cannot be more than simple. बिल्कुल ठीक है ना. देखो ना, veins में valves होती हैं because veins में blood is flowing at low pressure, so to prevent the backflow. Yes, all of you are correct. पढ़ रहे हो टॉपिक. तो veins में because blood is flowing at low pressure, there should be valve to prevent the backflow. Right auricle, लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में होता है. हमने पढ़ा था हार्ट का स्ट्रक्चर, वहां मैंने आपको वाल्व्स के बारे में बताया था कि बिटवीन द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स द वाल्व्स आर प्रेजेंट, है ना. टू द राइट साइड ऑल्सो, टू द लेफ्ट साइड ऑल्सो. तो अगर हम राइट साइड की बात करें, इट इज विच काइंड ऑफ वाल्व प्रेजेंट? इट इज ट्राइकस्पिड वाल्व. और अगर लेफ्ट की बात करें, इट इज बाइकस्पिड और द माइट्रल वाल्व आर प्रेजेंट, है ना. तो ध्यान रखना है हमें. तो देखो ना, तीनों ही केस में वाल्व प्रेजेंट है. वेन्स राइट बिटवीन द ऑरिकल्स एंड द वेंट्रिकल्स. दैट मीन्स आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी आर्टरीज, बिकॉज देयर इज हाई फ्लो ऑफ द ब्लड. यू नो, द ब्लड प्रेशर इज वेरी फ्लो इन अ वेरी हाई वेलोसिटी. सो दैट इज वाई देयर शुड बी नो वाल्व प्रेजेंट. नीड ही नहीं है वहां पे, तो क्यों प्रेजेंट होगी? सो दैट इज वाई नो वाल्व प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ द आर्टरीज. चलिए आगे बढ़ते हैं. Which one of the following blood vessels carries only deoxygenated blood? Again a simple one. Only vein which carry oxygenated blood. क्योंकि यहाँ पे अब भी हमारी बात हो रही है deoxygenated blood की, और आपसे पूछ रहे हैं कौन सा ब्लड में सिर्फ deoxygenated blood present है. तो हमें मालूम है veins carries deoxygenated blood, but only vein which carries oxygenated blood is the pulmonary vein. Yes, Shubham, you are correct. तो pulmonary vein is the exception because it carries oxygenated blood. Everyone is right. Aorta तो largest blood vessel है. कहाँ से arise होता है? Left ventricle से. क्यों arise होता है left ventricle से? क्योंकि left side में आपके oxygenated blood है. Aorta when comes out from the heart brings the oxygenated blood, divides into many branches, reaches to every body part and provides the oxygenated blood. सही बात है ना. तो एओर्टा में भी आपका it is oxygenated blood. Capillaries, but obvious oxygenated blood. So only blood vessels which carries deoxygenated blood is the pulmonary artery. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे. It is an exception. Though arteries always carries oxygenated blood, but pulmonary arteries is an exception, and it brings, कहाँ से निकलता है pulmonary artery? From the right side of the heart, and we know that ventricles are the pumping chambers, so that is why it arises from the right ventricles and carries deoxygenated blood towards the lungs for oxygenation. चलिए आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास. Yes, अभी हम बात कर रहे थे bicuspid, tricuspid valves are closed during, है ना.
तो कब, कौन, ये किस, कौन मुझे इसका आंसर करेगा? लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि व्हेन इट इज क्लोज एंड व्हेन इट इज ओपन। अब देखो ध्यान से, हमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा भी इधर उधर है तो आप इस क्वेश्चन को गलत मार्क कर दोगे, है ना। पहली बात तो ना हमें इसको थोड़ा ये समझना है, व्हाट डज दिस सिस्टोल एंड डायस्टोल मीन्स। अगर आपको ये नहीं मालूम होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं आंसर कर पाओगे। सिस्टोल का मतलब होता है, व्हाट यू सेड दक्ष, ए, ही इज सेइंग ए, ओके। बेसिकली सिस्टोल इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स, है ना, एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन, ठीक है। ओके तो ये बात तो इतनी पहले समझ लेते हैं हम, सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन। नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल की बात कर रहे हैं, यानी कि वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब जब वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है तब होता है, या वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब जब पूरा वो रिलैक्स स्टेट में है तब वाल्व्स क्लोज होती हैं। एट्रियल सिस्टोल, एट्रियम का कंट्रैक्शन होगा तब होगा लेट जॉइंट डायस्टोल। लेट जॉइंट डायस्टोल मींस व्हेन ऑल द 4 चैम्बर्स आर इन रिलैक्स स्टेट, नथिंग इज गोइंग ऑन, है ना। तो बेसिकली मतलब कहने का ये कि नो कंट्रैक्शन इज गोइंग ऑन, ठीक है। तो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स की लोकेशन अगर आपको पता होगी आप बहुत जल्दी इसको आंसर कर दोगे। और अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स। एक्चुअली दीज आर द एवी वॉल्व्स, इनको हम टुगेदर क्या बोलते हैं? AV valves. Why we say AV valves? Because these are present at the septum of the auricles and ventricles. है ना, अभी हमने देखा था कि ट्राइकस्पिड वॉल्व राइट साइड, बाइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व लेफ्ट साइड, तो दोनों ही कहाँ प्रेजेंट है? एवी वाल्व्स में। अब देखो ना, ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब शुरू होगा, बिफोर दैट इट इज क्लोज्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ, it may possible that the prevent of the backflow of blood can takes place from the ventricles to the auricles। हो सकता है, नहीं हो सकता है, अगर valves नहीं बंद हुई तो AV valves should be closed, है ना, before the ventricular contraction, right? क्योंकि भाई auricle आपके अब relax stage में, once the auricles contract, है ना, then it starts the contraction of the ventricles, but before the ventricular contracts the AV valve should closed। अगर ऐसा नहीं होगा तो backflow of blood can takes place from the ventricles to the auricles। So what will be the correct option? That is ventricular systole, it should be closed, AV valve should be closed before the beginning of the ventricular contraction। समझ आ रही है बात? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, it should be closed once the ventricular contraction begins। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। SA node is called the pacemaker of the heart। क्यों है pacemaker of the heart? Because it conducts the impulse from AV node, it initiates the cardiac muscles, it is present in the right atrium, it is made up of specialized muscle fiber। अब देखो वैसे ये पूरी जो कहानी है ना, इसके देवव्रत बोल रहे हैं ए, नहीं बच्चे, दिस इज रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। देखो बेसिकली मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट हम क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहे हैं कि करेक्ट और सही गलत क्या है, सही गलत क्या है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहे हैं कि पेसमेकर क्यों बोलते हैं इसको। यू नो, पेसमेकर इज समथिंग विच सेट्स द इम्पल्स फॉर द हार्ट, और विच सेट्स द कार्डियक इम्पल्स, और विच डिसाइड्स द रेट एट विच द हार्ट बीट, है ना। तो अगर आपने कार्डियक साइकिल थोड़ा सा पढ़ा है, कार्डियक साइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम SA नोड, then it goes to AV node, then it goes to bundle of His, right, and then it goes to Purkinje fibers। ठीक है, this is the proper sequence of the cardiac cycle। ठीक है, तो you know what SA node is the node, actually this is made up of specialized cardiac muscle fibers only। ये बात बिल्कुल ठीक है इसके बारे में, बट पूछ क्या रहे हैं हम कि पेसमेकर क्यों बोलते हैं हम SA node को। पेसमेकर मीन्स the node that decides at which the heart, the rate at which the heart beat, है ना। तो पेसमेकर is SA node। Yes Arjit, now you are right बेटा, it initiates the cardiac impulse।
Pacemaker is SA node because it initiates the cardiac muscles, cardiac impulse, and it decides at which rate the heart should beat. और अगर हम AV node की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं? Pace setter. Why we say pace setter? Because it transmits the impulse received from SA node to the bundle of his. तो ये पूरा चेन को बना रहा है. दो pacemaker initiates the cardiac impulse, but then AV node is a pace setter because it transmits the impulse received from the SA node to the bundle of his. ठीक है, तो ये बात ठीक है that it is present in the right atrium, it is made up of specialized cardiac muscle fiber, है ना. But then अगर हमको ये पूछा जाएगा कि why it is called the pacemaker, because it initiates the cardiac impulse. That is why it is called as cardiac muscle, pacemaker of the heart. चलिए next question पे आ जाते हैं. Next question says AV bundle is essential for the conduction of the cardiac impulse. देखो वही कहानी है, थोड़ी सी different form में. Same thing is this, but then question can be framed like this even. AV bundle is basically AV bundle क्यों बोल रहे हैं? Because when the AV node sends the impulse to the bundle of his, it divides into left and right bundles. So उस division को, because it is actually arising from the auricles and then going to the ventricles, hence these bundle of his also called as AV bundle. ठीक है, नहीं देवव्रत तुमने समझा नहीं सही से. अगर if you are saying C, है ना, अभी मैंने आपको बोला कि AV bundle is actually forms the bundle of his. Bundle of his means it divides the bundles into the right bundle and the left bundle, right AV bundle and the left AV bundle. ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? इट इज प्रेजेंट इन दी ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम. सेप्टम पे नहीं प्रेजेंट होता, इट ब्रांचेस आउट टू बंडल ऑफ हिज. एब्सोल्युटली, है ना, एवी बंडल ब्रांचेस आउट टू बंडल ऑफ हिज. It forms a continuity between atrial and ventricular muscles. None of the above. No, the option is it branches out to bundle of the his. ठीक है, SA node, AV node, bundle of his, then Purkinje fibers, and AV bundle branches out to form the bundle of his. So that is a part of the cardiac cycle only. Results into the auricular and ventricular contraction that makes your one heartbeat. ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं. द लेफ्ट वेंट्रिकल possesses thicker wall than the right ventricle. है ना, देखो अगर यहाँ तो वेंट्रिकल की कहानी की बात कर रहे हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में से किसका वॉल इज मच मोर थिकर, definitely the walls of the ventricles are much thicker than the auricles. क्यों? Because one ventricle has to pump the blood to the different parts of the body. ठीक है, because ventricles are the pumping chambers. That is why the walls of the ventricles are thicker as compared to the walls of the auricles. तो ये तो auricles ventricles की कहानी हो गई. बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे? The left ventricle possesses thicker wall than the right one. है ना, क्यों? देख लेते हैं. ऑप्शन ए, इट रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम. अब देखो ये तो वैसे ही गलत हो गया, वेंट्रिकल की बात कर रहे हैं और रिसीव की बात कर रहे हैं, कैसे हो सकता है ये? है ना, वेंट्रिकल तो पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, तो ये हमारा तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया. सेम गोज टू बी अगेन, इट दे आर आस्किंग अबाउट द रिसीव, इट रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो वेंट्रिकल तो पंपिंग चैम्बर्स होते हैं, तो ए और बी वैसे ही गलत हो गए हमारे. सी की बात कर लेते हैं. इट पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. वेंट्रिकल्स में लेफ्ट में तो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट है. अजित यू आर राइट, बिल्कुल ठीक आंसर बताया आपने हमको. लेफ्ट वेंट्रिकल में तो हम लेफ्ट साइड में तो हमारा कौन सा ब्लड प्रेजेंट है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पे तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं. तो तीन ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए. तो फोर्थ विल बी आवर ऑप्शन एंड दिस वन इज द करेक्ट वन टू. इट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट ऑफ द हार्ट. है ना, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज क्या हो रहा है? एओटा अराइज हो रहा है, एंड एओटा इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स. अभी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था दैट व्हेन इट कम्स आउट इट डिवाइड इनटू मेनी ब्रांचेस एंड इट सप्लाइज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. सो दैट इज व्हाई द लेफ्ट वेंट्रिकल possesses thicker wall than the right ventricle. ठीक है, तो it pumps oxygenated blood out of the heart. That is why it is much thicker than the even with the right ventricle. ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. What next says, if the blood pressure is measured as 120/80 mm of Hg, the term 120 refers to. अब देखो ध्यान रखनी है हमें ये बात, जो ये 120 की बात कर रहे हैं ना हम, देखो यहाँ पे भी दिए हुए ना हार्ट बीट रेट, पल्स रेट, डायस्टोलिक प्रेशर एंड सिस्टोलिक प्रेशर. तो डायस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक मीन्स दी कॉन्ट्रैक्शन प्रेशर, डायस्टोलिक मीन्स दी रिलैक्सेशन टाइम, उस वक्त क्या प्रेशर होता है. ठीक है, तो 120 इज ऑलवेज रेफर टू सिस्टोलिक प्रेशर, ये हमें बात ध्यान रखनी है. ठीक है, एंड 80 ऑलवेज रेफर्स टू डायस्टोलिक प्रेशर. तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, बात समझ आ गई होगी. व्हाट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, 120 is always the systolic pressure, 80 mm Hg is always the diastolic pressure. So our correct option will be option number D. Next देख लेते हैं, movement of WBCs out of capillaries. बहुत सिंपल है, हमने क्लास में डिस्कस किया था, है ना. इस क्वेश्चन को आप लोग कौन बताएगा इसका आंसर. यस शुभम, यू आर राइट. ट्रांसलोकेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसलोकेशन मतलब ट्रांसपोर्टेशन, और किसके ट्रांसपोर्टेशन को हम ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, इन प्लांट्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम इज ट्रांसलोकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर. ठीक है. Phagocytosis means engulfing of food particle in their solid form. That is phagocytosis. Pinocytosis means engulfing of food particle in liquid form. ठीक है, so that is what pinocytosis. तो अब हमारा क्या रह गया, डायपोडिसिस. डायपोडिसिस कई बार हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. डायपोडिसिस वो प्रोसेस है इन विच द सेल्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स कौन से हैं. यस, नेम द सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम. These are WBCs. ठीक है, the cells of the immune system or the WBCs that comes out of the capillaries, engulf the pathogen, prevents the infection. That process is called as diapedesis. तो आपसे क्या लिखा, क्या पूछा है क्वेश्चन, मूवमेंट ऑफ WBCs आउट ऑफ कैपिलरीज. तो कैपिलरी से WBCs के बाहर आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डायपेडिसिस. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था, that why only WBCs comes out, why can't RBCs comes out. Though RBCs are the smallest cells in the blood, है ना, RBCs are much smaller than WBCs. Why? Because WBCs has which shape? WBCs has amoeboid shaped. ध्यान रखिए ये बात. It can change their shape. That is why they show locomotion and can come out of the capillaries to perform the process of डायपेडिसिस और engulf the pathogen or kills the infection. ठीक है, तो RBCs नहीं आ सकते कैपिलरी से बाहर, though they are smallest cells, but WBCs can come out of the cell because they can locomote, they have amoeboid movement, and that is why these cells are the cells of the immune system. ठीक है, तो डायपेडिसिस कौन से ब्लड सेल्स शो करेंगे, WBCs. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, आई मीन मूवमेंट ऑफ WBCs आउट ऑफ कैपिलरी इज डायपेडिसिस. यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, WBCs भी दे आर टू टाइप्स, ग्रैन्युलोसाइट्स, ए ग्रैन्युलोसाइट्स. तो वन ग्रैन्युलोसाइट दैट इज व्हाट, दैट इज न्यूट्रोफिल्स, है ना, एंड वन ए ग्रैन्युलोसाइट दैट इज व्हाट, दैट इज मोनोसाइट्स. So these two basically shows the process of diapedesis. तो आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं, which of the following types of two WBCs shows the process of diapedesis. तो एक ऑप्शन में आपके पास जरूर होगा the grouping of the two, that is neutrophils and the monocytes. So these two comes out of the capillaries and shows the process of diapedesis. आगे बढ़ लेते हैं. राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम, है ना. अब देखो अगेन वही कहानी, दो तीन चीजें अगर आपको मालूम होंगी बहुत अच्छे से आंसर कर दोगे. राइट एट्रियम की बात कर रहे हैं, राइट साइड में कौन सा ब्लड प्रेजेंट है हार्ट के, राइट साइड हैज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रिंग्स फ्रॉम विच ब्लड वेसल्स इनटू द राइट एट्रियम. Yes, Devrat, you're right. So it is basically
सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. सिर्फ सुपीरियर से काम थोड़ी ना चलेगा. इंफीरियर वेना केवा ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लोअर पोर्शन ऑफ योर बॉडी टू द राइट एट्रियम फॉर द ऑक्सीजनेशन फर्दर, है ना. तो बेसिकली राइट एट्रियम ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स द ब्लड फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा which brings deoxygenated blood from the upper portion of the body, and inferior vena cava which brings deoxygenated blood from your lower portion of the body to the right atrium of your heart. ठीक है, तो ध्यान रखनी है हमें बात. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं. व्हाट सेज नेक्स्ट? हार्ट ऑफ मेन इज, है ना. ह्यूमन हार्ट किस टाइप का है? कार्डियोजेनिक. नहीं देवव्रत, इट इज नॉट कार्डियोजेनिक. न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, डायजेनिक. नो, यू नो एक्चुअली देखो ना, अभी हमने डिस्कस किया था, देयर इज अ पेसमेकर विच इज प्रेजेंट इन आवर हार्ट, दैट इज कॉल्ड एज SA node. And what is SA node? It is nothing but the specialized cardiac muscle fibers, है ना. ये आपकी कार्डियक मसल्स ही हैं, स्पेशलाइज्ड है टू फॉर्म द नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट. नोडल टिश्यू मीन्स इट फॉर्म्स SA node, AV node, bundle of his Purkinje fibers. That is the component of your cardiac cycle that comprises heartbeat. तो बेसिकली आपका हार्ट में ही, आपकी हार्ट की मसल्स ही आपकी कार्डियक इम्पल्स को इनिशिएट कर रही हैं, एंड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड योर हार्ट ओनली. आपके राइट एट्रियम में ही तो प्रेजेंट होता है ऐसे नोट, अभी हमने उस क्वेश्चन में देखा था, है ना. तो बेसिकली व्हाट डज मायोजेनिक मीन्स? मायो मतलब होता है मसल्स, ठीक है, और जेनिक मीन्स विच जनरेट समथिंग. सो आपकी हार्ट की मसल्स ही आपकी कार्डियक इम्पल्स को जनरेट कर रही हैं और इनिशिएट कर रही हैं, है ना. सो ऐसे टाइप का हार्ट जिसमें हार्ट मसल्स और हार्ट के अंदर ही वो कंपोनेंट प्रेजेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएशन ऑफ योर हार्ट बीट, दैट हार्ट इज कॉल्ड एज मायोजेनिक हार्ट. ठीक है, तो बिकॉज द मसल्स ऑफ द हार्ट आर एक्चुअली इनिशिएटिंग द कार्डियक इम्पल्स, so it is called as myogenic heart. The human's heart is called as myogenic heart. ठीक बात है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सीक्रेटेड, सॉरी इट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन इज सीक्रेटेड. बहुत सिंपल है, हमने क्लास में डिस्कस किया है. थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम थ्रोम्बोकाइनेज भी बोलते हैं, है ना. तो थ्रोम्बोकाइनेज कौन सा ऑप्शन जो है इसमें से दिया हुआ है, कौन सीक्रीट करता है? प्लेटलेट्स, लिम्फोकाइंस. देवव्रत यू आर राइट. हेल्पर डी सेल्स, बंडल ऑफिस. यस, many of you are correct. Richa, Arjit, we have discussed in the class a mechanism that is called as the clotting of blood, है ना. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड हमने क्लास में डिस्कस किया था. उसमें मैंने आपको बताया था कि एट द साइट ऑफ द इंजरी देयर इज वन एंजाइम इज रिलीज्ड which is very much required for the formation of clot after the injury, है ना. तो वो एंजाइम को हम थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोकाइनेज बोल सकते हैं, एंड दैट इज रिलीज्ड बाय प्लेटलेट्स प्रेजेंट इन योर ब्लड, है ना. इट इज थ्रोम्बोकाइनेज इज एन एंजाइम विच इनिशिएट्स द ब्लड क्लॉटिंग एंड इज बीन सीक्रेटेड बाय द प्लेटलेट्स. ध्यान रखनी है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट आफ्टर द इंजरी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. आरबीसीज इन मैमल्स हैव नो न्यूक्लियस. अब देखो आरबीसीज जो होते हैं वो ई न्यूक्लिएटेड होते हैं मैमल्स में. वी नो दैट आरबीसीज आर ई न्यूक्लिएटेड. वाई? एंड यू नो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमल्स. और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के केस में विच सेल्स आर ई न्यूक्लिएटेड? दीज आर सीव ट्यूब्स. ध्यान रखनी है हमें बात ये, ठीक है. क्वेश्चन इस पे बन सकता है. क्वेश्चन देख लेते हैं. आरबीसीज इन मैमल्स हैव नो न्यूक्लियस बिकॉज ऑप्शन ए इट हैज डीजेनरेटेड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस सिंस अर्ली. न्यूक्लियस इज हार्मफुल फॉर आरबीसीज. न्यूक्लियस डिक्रीजेस सरफेस एरिया, है ना. ऐसा नहीं है, न्यूक्लियस डू नॉट डिक्रीज सरफेस एरिया. न्यूक्लियस इज नेवर हार्मफुल फॉर एनी सेल. दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस सिंस अर्ली. ये भी गलत बात है. पहले न्यूक्लियस होता है आरबीसीज के बाद, बट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट, है ना, एट मैच्योरिटी दे लूजेस न्यूक्लियस.
बिल्कुल ठीक देवव्रत. They loses nucleus at the time of maturity because the RBCs has to carry something which is very important to carry the oxygen to the different parts of the body. है ना? Otherwise, we will not be able to survive even because then the metabolism will not takes place. Our oxidation of food will not takes place. There is no release of energy that occurs. So that is why there should be a sufficient and proper space for the accommodation of that pigment present in your RBCs. And that pigment is hemoglobin. It is a respiratory pigment that carries oxygen to the different parts of the body. That is why to provide space or accommodation for hemoglobin in your RBC, there is a majority of the cell organelles are also absent in RBCs. Again, to provide space, ये आपके स्कूल टेस्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है आपके स्कूल एग्जाम में, that why RBCs are enucleated, है ना? Why? Because to provide space or accommodation for the hemoglobin or respiratory pigment so that it can carry the oxygen to the different parts of your body and oxidation of food can takes place to release energy. ठीक है, metabolic function है, very important function. चलिए आगे देख लेते हैं. Presence of RBCs in urine is known as. RBCs में यूरिन का होना, on the contrary, यूरिन में आरबीसीज के होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज. यस, यू राइट बच्चे, इट इज हेमेटोरिया, है ना? प्रोटीनूरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन यूरिन. अल्कप्टोनुरिया मीन्स प्रेजेंस ऑफ द कीटोन बॉडीज. हेमेटोरिया प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यानी कि प्रेजेंस ऑफ आरबीसीज इन यूरिन. समझ रहे हो इसकी बात? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है इसके पीछे की कहानी. अगर आपकी यूरिन में आरबीसीज इज देयर, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर नेफ्रॉन्स. Nephrons are the structural and the functional units of kidney, and we know that in the nephrons only urine formation takes place, है ना? तो that means there is some problem in your nephron. आपका जब फिल्ट्रेशन हो रहा है तो आरबीसीज भी छन के फिल्ट्रेट होके नीचे आ रहे हैं in your tubules. So that is why it is present in your urine. So you need to go to the doctor and check with your nephrons. There is some problem in your nephrons. If RBCs is present in your in urine, there is a disorder that is being present in your body. ठीक है? समझ आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. At high altitudes, the erythrocytes in human blood. अब हम जब थोड़ा सा ऊंचाई पे जाते हैं तो हमारे ब्लड में erythrocytes, I guess you all know that, we have discussed it. Erythrocytes are RBCs. तो RBCs क्या करते हैं? क्या होता है उनका जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं? डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर. नो, डिक्रीज नहीं होता, इंक्रीज इन साइज भी नहीं होता, डिक्रीज इन नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा. ऑब्वियसली इंक्रीज इन नंबर होगा बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड द ऑक्सीजन इज लेस, है ना? So that is why our blood accommodates accordingly or acclimatize accordingly, and there is increase in the number of the RBCs so that we can have more amount of oxygen in our RBCs, right, to carry the different parts of the body. So that is why at higher altitude increase in the number of RBCs takes place. ठीक है? Okay, next question. During ventricular systole, है ना? मतलब जब ventricular contract हो रहा है तो क्या होता है उस वक्त? Option A, oxygenated blood is pumped into a pulmonary vein and deoxygenated blood is pumped into pulmonary artery. है ना? ऐसे possible है. Pulmonary vein तो carries oxygen, carries oxygenated blood towards the left atrium from the lungs. तो ये तो गलत बात हो गई बिल्कुल. This option is completely incorrect. Let's see, Devrat, whether it is D or not. B is oxygenated blood is pumped into the pulmonary vein. है ना? Pulmonary vein तो हमेशा oxygenated blood लेके आती है, तो pump कैसे होगा? And deoxygenated blood is pumped into the pulmonary artery. बिल्कुल गलत बात, है ना? Oxygenated blood is pumped into the pulmonary artery and deoxygenated blood is pumped into the aorta. Aorta तो always carries oxygenated blood, largest blood vessel arising from the left ventricle. तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल गलत है. लास्ट वाला देख लेते हैं, सही है.
ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू एओर्टा. बिल्कुल ठीक बात है ना, लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट. एओर्टा कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड इनटू पल्मोनरी आर्टरी. बिल्कुल ठीक बात है. ओनली आर्टरीज दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अराइजिंग फ्रॉम योर राइट वेंट्रिकल. ठीक है, तो oxygenated blood is pumped into the aorta and deoxygenated blood pumped into the pulmonary artery, and they carries the oxygenated and deoxygenated blood respectively to the different parts of the body. ठीक है, okay. What prevents the clotting of blood into the blood vessels? अब देखो ना, हमारी blood vessels में blood present है, तो क्लॉट क्यों नहीं हो रहा? There must be some anticoagulant present, anti-clotter, natural anti-clotter present. तभी तो नहीं होगा क्लॉट, वरना तो क्लॉट हो जाएगा. तो ऐसा हमारे ब्लड में कौन सा नेचुरल एंटी कोआगुलेंट प्रेजेंट है? ध्यान रखनी है हमें बात. नो शौर्या, दिस टाइम यू आर इनकरेक्ट बेटा. नेचुरल एंटी कोआगुलेंट प्रेजेंट इन योर ब्लड कौन सा है? एनीवन कैन आंसर? वी हैव डिस्कस्ड इन द रेगुलर क्लास. हेपारिन. It is heparin. Heparin is a natural anticoagulant present in your blood which prevents the clotting of blood in your blood vessels. ठीक है, ध्यान रखनी है हमें ये बात. ओके, आपकी जो ब्लड सेल्स में WBCs जो होते हैं, one of the WBCs, one of the granulocyte, you know, this leads to the secretion of this natural anticoagulant, that is heparin. ठीक है, तो इसी की वजह से हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड क्लॉट नहीं होता है. ओके, फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी? है ना, ब्लड क्लॉटिंग के लिए क्या जरूरी है आपको ये बताना है. अभी तो हमने डिस्कस किया था, थ्रोम्बोप्लास्टिन जरूरी है, इनिशिएट करता है ब्लड क्लॉटिंग को. तो ये दो ऑप्शंस तो हमने एलिमिनेट कर देते हैं, जरूरत नहीं हमें इनकी, क्योंकि ये इनकरेक्ट है ना. थ्रोम्बोप्लास्टिन सी एंड डी दोनों में है, दोनों सही ऑप्शन बन सकते हैं, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें सोडियम की नहीं, कैल्शियम की जरूरत होती है. ठीक है, सही बोल रहे हो रिचा, अर्जित, एब्सोल्युटली राइट. कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन is required for the clotting of blood after the injury. So our correct option will be calcium and thromboplastin. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. yes, which one of the following process in excess causing temporary wilting? wilting मतलब होता है कि प्लांट के पार्ट्स का सूख जाना, स्पेशली लीव्स की बात करें हम तो सूख जाना, ड्राई हो जाना, टेम्परेरी विल्टिंग की बात कर रहे हैं. तो अब इतना तो बताया मैंने, आई गेस समझ में आ गई होगी कहानी. फोटोसिंथेसिस, सी हाउ कैन यू राइट फोटोसिंथेसिस, है ना. अरे मैं बोल रही हूँ टेम्परेरी विल्टिंग, प्लांट पार्ट्स का सूख जाना, तो सूखेंगे कैसे? यस सूर्यांशी, यू आर करेक्ट बेटा. प्लांट की पत्तियां, प्लांट के पार्ट्स, स्पेशली लीव्स कब सूखेंगे? जब बहुत ज्यादा पानी का लॉस होगा, वाटर लॉस होगा, तभी तो सूखेंगे. तो वाटर लॉस इन सारों में से कौन से प्रोसेस में होता है? हाँ, रेस्पिरेशन में वाटर लॉस होता है, रेस्पिरेशन में तो नहीं होता वाटर लॉस. वी नो दैट. क्या होता है रेस्पिरेशन में, है ना? वाटर लॉस होता है हमारा ट्रांसपिरेशन में, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, दैट इज ट्रांसपिरेशन. तो अगर एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन होगा, इट रिजल्ट्स इन टेम्परेरी विल्टिंग ऑफ द लीव्स. ठीक है, सो हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ट्रांसपिरेशन. समझ आई बात? टेम्परेरी विल्टिंग मीन्स द ड्राइंग ऑफ द लीव्स टेम्परेरीली, एंड दैट कैन बी कॉज्ड ड्यू टू द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर. And excessive loss of water can take place through a process that is occurring in plants called as transpiration. ठीक है? So I guess that was all about the questions which I have brought from the topics that is respiration and circulation. I hope तुम लोग को समझ आए होंगे questions, right? Topic भी थोड़ा सा clear हुआ होगा. We'll discuss much more in the next session. But these questions are very much important for your NTSC stage 1 and for your school exam, because now this time the school exam is also based on MCQs as of now. We know that.
ओके बेटा, आई होप तुम लोग को क्लियर हुए होंगे टॉपिक्स दोनों ही. नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल ब्रिंग मोर क्वेश्चंस, द लेफ्ट आउट प्रोसेस, life processes, that is excretion, and then the further topics like control and coordination as well for your NTSC stage 1, because all the syllabus of class 10th will be the syllabus of the NTSC stage 1. ठीक है, I have brought these questions from the first, from the life processes, because that also comprises of the exam of your school exam. But in the upcoming sessions, we'll discuss more questions from the left out topic, excretion and control and coordination. ठीक है? So I hope you people like the video and you understand the questions well. So that's all for today's class. If you people liked it, if you find it fruitful in any way, do like it and subscribe it our channel, right? And do share with your friends. So that's all for today's class. Thank you all. Thank you, ma'am. Welcome, bacha. Thank you, ma'am. Okay, beta.